بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ میرا نام کنزا ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اکلوتی ہی تھی، میرے چچا نے میری پرورش کا ذمہ لے لیا۔ پہلے تو میرا بہت خیال رکھتے، میری ہر ضروریات پوری کرتے، پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہو گیا، پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ میرا اسکول چھڑوا کے مجھ سے چچی سارا دن کام لیتی اور ان کے بچے اسکول جاتے۔ میں پہلے تو بہت روتی، پھر صبر آ گیا۔ میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور گھر کے کام کرتی۔ سارا دن سب نے مجھے نوکرانی سمجھ لیا تھا، میں تو انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا چچا میری شادی کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، چچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری شادی سے اتنا خوش کیوں ہیں؟ میں تو ان کو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہوں، انہیں میری شادی کر کے کیا ملے گا؟ پھر میں خاموش ہو گئی۔ میرا خیال تھا شادی کے بعد میری اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی۔ شادی والے دن جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا، نشے میں چور تھا، میں اسے دیکھ کے ڈر گئی اور خود میں سمٹ گئی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا، اور میں روتی رہی، اپنا گناہ سوچنے لگی کہ مجھے کس کی سزا مل رہی ہے۔ چچا کے گھر باتوں سے وار کر کے مجھے زخمی کیا جاتا، ذہنی طور پر مارا جاتا، پر یہاں تو مجھے جسمانی طور پر بھی اذیت دی جانے لگی۔ میں خاموش ہو جاتی اور سوچنے لگتی آخر چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی؟ میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں آئے اور میرے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پہ استری رکھ دی۔ میں درد سے بلبلا اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور غصے میں بولے، یہ رونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کیا کرو، میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی ہوں، مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مطلب میں سمجھ نہ سکی۔ وہ کیسی عورت مجھے سمجھ رہا تھا؟ میں ابھی اپنے پر ہونے والے ظلم کے بارے میں پوچھنے لگی تھی، وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ پہ جلن ہونے لگی، میں اس سے کچھ پوچھنے لگتی، میری ہمت جواب دے جاتی۔ شادی کو کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ نہ دیکھی۔ مجھے حیرت ہوتی یہ شخص ایسا کیوں ہے، اسے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پر میں کبھی پوچھ ہی نہ سکی۔ جب بھی آتا مار پٹائی کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا اور میں اپنی قسمت کو بیٹھ کے روتی رہتی۔ میں رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک آ کر مجھ پہ چلانے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کے وقت اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم آج گلی میں کیوں گئی تھی؟ تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر پھنسا لیتی ہیں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا۔ اس شخص نے عورتوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں پال رکھی تھی؟ ہر وقت عورت کی برائی، ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا اور میں اسے دیکھتی رہ جاتی۔ گلے میں آنسوں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، وہ مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے آیا اور مجھے بیڈ پر پھینکا اور بری طرح سے مارنے لگا۔ میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے رو رو کر۔ وہ وہیں آرام سے سکون سے سو گئے اور میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ اس شخص کو بہت سکون ملتا تھا مجھے مار کر، اور میں یہ سوچتی کیوں اتنی نفرت کرتا ہے یہ شخص۔ پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزر گئی، نیند تو کوسوں دور تھی۔ صبح طبیعت خراب ہو گئی، مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے خراب ہے۔ ماں معمول کے مطابق کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آ گیا اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ وہ غصے میں بولا، جب بھی گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی ہو اور کوئی کام نہیں ہے؟ میں کوئی گھر میں کھانے آتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا، میں نے پہلی دفعہ ان کے سوال میں جواب دیا، کھانے کے علاوہ مارنے بھی آتے ہیں، پر میرے خیال میں بھی نہیں تھا اس شخص کو میری یہ بات پہ اتنا غصہ آئے گا۔ اس نے کھانے والی ٹرے صحن کے درمیان میں پھینک دی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی، وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا تھا۔ وہ غصے میں میری طرف قدم بڑھانے لگا، میرا سر چکرایا اور میں زمین میں بوس ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھولی میں کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر میرے شوہر کو ہدایت دے رہی تھی کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔
मैं सवालिया नज़रों से अपने शौहर को देखने लगी, पर डॉक्टर ने जो अगली बात की मुझे सारी सूरत हाल समझ आ गई। डॉक्टर कह रही थी अगर कोई टेंशन दी तो इनके साथ साथ इनके बच्चे की जान को भी खतरा होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और मैं अपने शौहर को देखने लगी। मैंने पहली दफ़ा इसके चेहरे पर गुस्सा ना देखा, मगर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी ना थी। बस वो खामोशी से डॉक्टर की बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वो भी बाहर चला गया और मुझसे कोई बात ना की। मेरी मुस्कुराहट एकदम सिमट गई और मैं बिला वजह अपने हाथ देखने लगी। मेरे हाथों की लकीर में शायद कोई खुशी की एक लकीर ही ना थी। मैंने अपने गिरने वाले आंसू साफ किए और सोचने लगी, चाचा के घर में और इस घर में कितना फ़र्क था। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मुझे ये जानता था चाचा ने मेरी इससे शादी क्यों की। जो शख्स औरत ज़ात से इतनी नफ़रत करता और इतनी नफ़रत क्यों करता है। मैं पूछती भी किससे, मैं तो किसी को जानती तक ना थी। कौन मुझे बताता इस शख्स के बारे में। मैं तो तन्हा थी, ना इसकी कोई माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, सिर्फ एक ये जालिम शख्स। पर मैं खुश थी, कोई तो था मेरा चाहने वाला। जैसा भी हो, मैं अपनी सोचों में गुम, ना जाने कब नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब आँख खोली तो मेरा शौहर घर पर मौजूद ना था। मैं उठी और फ्रेश हुई। अभी मैंने नाश्ता करना ही था कि हमसाई आ गई। मुझे हैरानगी हुई, पहली दफ़ा कोई औरत मेरे घर आई थी। इसने मुझे बताया मैं साथ वाले घर में रहती हूँ। फिर अजीब सी बात कह गई, बहन अपने शौहर को काबू में रखो। मैं हैरानगी से इसे जाता हुआ देखने लगी। मेरे शौहर ने क्या कर दिया जो मैं इसे काबू में रखूं। ज़िंदगी गुजरने लगी। मेरे शौहर ने मुझ पे हाथ उठाना छोड़ दिया था। वो खुद भी गुमसुम सा रहता। पर मैं हैरान ज़्यादा दिन तक ना रही। अगले दिन ही मुझे थप्पड़ पड़ गया। पर मैं क्या कर सकती थी। बिला वजह इस शख्स का गुस्सा और बिला वजह मुझे जलील करना शायद इसका शख्स का मशवरा था। इस शख्स के साथ इतने साल बिताने के बाद भी इसे मैं समझ ना सकी। वो क्या, मैं रात के वक्त गार्डन में टहल रही थी, अभी तक मेरे सरताज जी घर नहीं पहुंचे थे। मुझे नींद आने लगी। मैं कमरे में चली गई, पर मैं इनके आने से पहले तक सो भी नहीं सकती थी। वैसे ही बैठकर अपनी गुजरी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। मुझे तो याद भी ना था कि कब मैं खुलकर मुस्कुराई थी। अचानक से दरवाज़ा खुला, मुझे लगा मेरे शौहर आ गए। मैं बामुश्किल बेड से उठी, मगर सामने किसी अनजान शख्स को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने डर कर कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो तो पहले मुझे गुस्से में देखता रहा, इसकी आंखें लाल सुर्ख थी। अचानक इसका गुस्सा गायब होने लगा। वो पीछे कदम करता कमरे से बाहर निकल गया। मैं भी इसके पीछे गई। वो वहाँ बिना रुके ही चला गया। इस दौरान मेरा शौहर मेरी तरफ आया। इससे पहले मैं कुछ पूछती वो मुझसे पूछने लगा, ये कौन था। इसके चिल्लाकर पूछने पर मुझे अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा कि मैं नहीं जानती, मगर इस शख्स ने इतने ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो चिल्ला चिल्ला कर मुझे बुरा भला कहने लगा। शायद वो होश में नहीं था, मुझे बुरी तरह मारने लगा। इसने मुझे बोलने का मौका ही ना दिया और खुद ही बोलता गया, तुम जैसी लड़कियों के ना जाने कितने यार होते हैं और ना जाने किस किस से चक्कर चलाया होगा तुमने। इसने मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से में कहा, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए। जहाँ मर्जी जाओ, बल्कि कहाँ जाओगी, अपने इस यार के पास जाओगी। इसने ये कहकर मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से रोती रही। दरवाज़ा खटखटाती रही, पर दरवाज़ा ना खुला और ना ही मेरे लिए खुलना था। मैं सड़कों पे दर बदर फिरने लगी। कहाँ जा सकती थी, चचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर में जाने से अच्छा था मैं मर जाती। फिर एक रात वो नन्ही सी जान इस दुनिया में आ गई। इसका और अपना पेट पालने के लिए सारा दिन लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती, लोगों की ठोकरें खाती। मेरा बेटा सारा दिन रोता और मैं इसे देखकर ना जाने किस करब से गुजरती। मैं रोज़ जी जी कर मरती। मुझे अपनी सांसें बोझ लगने लगती थी। मैं अपने बेटे को सीने से लगाए सड़कों पर फिरती और इस शख्स को बद्दुआएं देती। न जाने वो कौन था और क्यों मुझे इस तरह बर्बाद कर गया था। मुझे अपना शौहर याद आता था। जैसा भी था, मैं इसके साथ महफूज थी, एक छत के नीचे रहती थी। बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। सारे लोग वहाँ से कहीं ना कहीं जाने लगे। मेरा बेटा सर्दी से बुरी तरह कांपने लगा। मैं इसे सीने से लगाए बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेटे को बुखार होने लगा। मैं इसे चूम रही थी, अचानक कोई मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने निगाहें उठाकर सामने बैठे शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा।
मेरे तन बदन में आग लग गई। वो मुझे बड़े आराम से कहने लगा, उठो मेरे साथ चलो। इसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने इससे अपना बेटा छीन लिया। बाद में मुझसे झगड़ लेना, तुम्हारे बेटे को बुखार है, अगर इसकी ज़िंदगी चाहती हो तो उठो यहाँ से चलो मेरे साथ। मैंने अपने रोते बेटे को देखा और इसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले आया। वो घर कम और महल ज़्यादा लग रहा था। मैंने हैरानगी से इसकी तरफ देखा और गुस्से में इससे कहा, क्यों मुझे बर्बाद किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मुझे क्यों बर्बाद किया? खुशियाँ तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, पर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों किया ऐसा? मैंने इसका गिरबान पकड़ा और पूछने लगी, मगर वो आराम से वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद आकर मुझे कपड़े दिए और कहा कि अपने बेटे के भी बदल दो और अपने भी बदल लो। वो ये कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बेटे को सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद फिर वो आया और बोला, मेरा नाम काशिफ है। मैंने गुस्से में कहा, मैं क्या करूँ आपके नाम का? आप मेरे साथ आए और मेरे शौहर को बताएं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगी, मगर वो वहीं खड़ा रहा और बोला, तुम्हारा शौहर इस दुनिया में नहीं है, वो खुदकुशी कर चुका है। वो इतने आराम से बताने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने इसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया। वो कुछ ना बोला, तुम भी शादी कर लो। फिर इसने कहा। इसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने ना जाने इससे खड़े खड़े कितनी बातें सुना दी, पर मुझे हैरानगी हुई। वो शख्स अपने आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया। दिन गुजरने लगे। वो शख्स मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करता, इसे खाना खिलाता, इसके लिए खिलौने लाता और मैं अपने बेटे को इससे दूर रखती। वो मुझे एक ही बात कहता, शादी कर लो, पर मैं इसकी बात का जवाब ना देती। अक्सर इसे तन्हाई में रोता हुआ भी देखती। वो बहुत कम मुस्कुराता। तुम अगर किसी और से शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं ऐसे तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। अगर तुम कहीं और जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इसकी बात सुनने के बाद मेरे ज़हन में चाचा का घर आया, पर मैं उधर नहीं जा सकती थी। मैंने इसके साथ शादी के लिए हामी भर ली और इसका और मेरा निकाह हो गया। मैं अक्सर गुस्से में इससे पूछती, तुम रात मेरे कमरे में क्यों आए? पर मुझे जवाब में इसकी निगाहों में शर्मिंदगी नज़र आती। वो कोई जवाब ना देता। एक दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई। इसके बाद वो मेरा बहुत ख्याल रखता, पूरी पूरी रात मेरे पास बैठा रहता, मेरे बेटे को खाना खिलाता। मैंने इससे बेबसी से कहा, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे सच बता दो। वो निगाहें झुकाकर बोला, तुम्हारे शौहर को लड़कियों से नफरत थी क्योंकि इसे किसी लड़की ने धोखा दिया, और फिर तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे चचा से तुम्हें ख़रीदा। वो अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालता। एक दिन ऐसे ही मेरी इस छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, काम की वजह से, क्योंकि वो मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं मालूम था इसने इस छोटे से झगड़े को इतना बड़ा कर देना है। इसने मेरी बीवी को मार दिया जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इंतकाम की आग में जलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था, मैं भी इसकी बीवी को जलील करके मार दूंगा। इस रात में तुम्हें मारने के इरादे से आया, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपनी बीवी याद आ गई और मैं वहाँ से चला गया। पर मैं नहीं जानता था कि वो इतना शक करेगा। इसके बाद मुझे कहीं सुकून ना मिलता। मैं गरीबों की मदद करता, फिर अक्सर मैं तुम्हें देखता और सोचता, कहीं देखा था। फिर मुझे याद आ गया और मालूम करने पर ही पता चला तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से हुआ है। पर मैं नहीं जानता था कि मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बताते हुए रोने लगा। मैंने इसके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और इसे माफ़ कर दिया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई और मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। इतने गमों के बाद मुझे खुशियाँ मिली। हम खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।